रिकॉर्डिंग चालू कर दो। हाँ भाई, बीच में थोड़ी नेट की स्पीड नहीं थी तो इसलिए वीडियो ब्लर्ड आ रहा था, क्लियर भी नहीं था। तो एक बार मैं दोबारा चालू कर देता हूँ, दोबारा एक बार बता देता हूँ। सपोज दैट टू लेंस L1 and L2 are placed in contact to each other, ठीक है ना, L1 and L2 with focal length f1 and f2, right? An object is placed at point O, ठीक है, it is object for first lens, so that distance is taken u1 and u1 is equal to u. After refraction by both lens, after refraction by both lens, image formed at I2, ठीक है, it is image for second lens, so that it is taken as I2 and I2 is equal to taken I1. Clear? If only one lens L1 is used in diagram, then image formed at I1, this image is behave like as an object for a second lens, and final image is formed at point I. हाँ भाई विवेक, आज थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है तो बीच बीच में वीडियो ब्लर हो ही रहा है अपने पास, है ना। नेट अपने पास अनस्टेबल आ रहा है तो दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैंने क्लियर भी 2 बार किया है इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ सेकंड इमेज V2 इज इक्वल टू V1, V1 इज टेकन एज U2, ठीक है ना। डायग्राम से इतनी अपने को डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, केवल डायग्राम बनाना है। बाकी जो डिराइव करेंगे ना वो बहुत सिंपल मेथड है भाई, अपने पास 2-3 चीजें मेमोराइज रखनी है। इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस इज बिहेव लाइक एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी लेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर दिस टॉपिक। क्लियर? बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v minus 1/u. Clear? For lens L1 we get 1/f1 is equal to 1/v1 minus 1/u1. u1 is taken as u, so that 1/f1 is equal to 1/v1 minus 1/u. It is equation number first. नेक्स्ट अपन चलें इसमें, देखो फॉर लेंस L2 1/f2 is equal to 1/v2 minus 1/u2. अब अपन रिजल्ट यूज में लें, बाय V2 is equal to V and U2 is taken as V1. बस ये रिजल्ट है अपने पास। तो 3 रिजल्ट्स हैं जो यूज में लेने हैं, U2 is equal to V1, V2 equal to V and U1 is equal to U. बाकी सिंपल है। Then 1/f2 is equal to 1/v minus 1/v1, इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ऐड कर लें अपन दोनों को इनमें, then 1/f1 plus 1/f2 in left hand side, 1/v1 minus 1/u plus 1/v minus 1/v1 cancel out, then 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/v minus 1/u. फिर ये लेंस फॉर्मूला आ गया अपने पास, then 1/f1 plus 1/f2 is equal to 1/f, लेफ्ट राइट करें इसमें, then 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, where f is a effective focal length of combination of lens. Where f is a effective focal length of lens combination.
or it is called a equivalent focal length of combinations of a lens. Clear? Now for n lens we get 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 and so on 1 upon fn. Clear? 1 upon f is equal to p. कल स्टडी किया था आपने पावर ऑफ लेंस. सो दैट p is equal to p1 plus p2 and so on pn. ठीक है. अब अपन चलते हैं. आज अपन ने जो लेंस कॉम्बिनेशन स्टडी किया है उसमें आप देखें लेंस जो है वो कांटेक्ट में है एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस इज 0. ठीक है, दोनों चिपके हुए हैं. अब अपन चलें, कभी वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूं. लेंस जो है वो d डिस्टेंस पे रखे हों, ये है डिस्टेंस हो, देन इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर्मूला 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d square upon f1 f2. It is formula of effective focal length if two lenses are placed at distance d and p is equal to p1 plus p2 minus d square p1 and p2. अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई. चलो भाई. एक एग्जांपल बता देता हूं भाई मैं, उसके बाद में अपन चलें. टू लेंस कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ is placed in contact with a concave lens of 20 centimeter. Then find out effective power and effective focal length. Power and focal length. देखो भाई अपन चलें. सबसे पहले convex lens of 30 centimeter focal length is placed in contact with concave lens of 20 centimeter. Then find out effective power and effective focal length. ठीक है, तो two lenses given है f1 and f2. Value of f1 convex lens it is plus 30 centimeter. Convex second lens is concave so that it is a minus 20 centimeter. ये concave lens. Then 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 and 1 upon f is equal to 1 upon 30.
plus 1 upon minus 20, then 1 upon f is equal to 60 LCM plus 2 minus 3, and 1 upon f is equal to minus 1 by 60, and f is equal to minus 60 centimeter, so that effective lens is behave like as a concave lens. Effective lens is behave like as a concave lens because focal length is a negative. ये इससे ये पता चला it is behave like as a concave lens. Now calculate power. P is equal to 1 upon f. सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करें तो f is equal to minus 60 सेंटीमीटर, minus 60 upon 100, so that it is minus 6 by 10. ठीक है. Then power of lens combination 1 upon minus 6 by 10, right? Then P is equal to minus 10 by 6, and power of this combination is equal to minus 0.6 diopter. Power is a minus 0.6 diopter. Clear? इसमें अपने पास वाइस वर्सा भी चल लेते हैं. Two lengths of powers minus 3 diopter and plus 2 diopter are placed in contact. Then find out effective focal length. Minus 3 diopter and plus 2 diopter are placed in contact. Then find out effective focal length. पहले नेट पावर फाइंड कर लें अपन चाहें तो. Then P is equal to P1 plus P2, and P is equal to minus 3 plus 2, and P is equal to minus 1 diopter, right? F is equal to 1 upon P, so that 1 upon minus 1, and F is equal to minus 1 meter in centimeter minus 100 centimeter focal length of a lens combination. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे. अरे किरण, बार बार डिस्कनेक्ट कैसे होता है आज तेरी क्लास में? चलो भाई, समीर शर्मा इन फर्स्ट एग्जांपल P is equal to 1.67. P is equal to minus 1.67 diopter. समीर फर्स्ट एग्जांपल में 30, 20, ठीक है. देन एक बार देख लेते हैं अपन. minus 1 by 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 6 by 10, 10 by 6, sorry, you are right, it is minus 1.67 diopter. सही है भाई समीर?
scattering of a light. Our next topic is a scattering of light. सबसे पहले अपने पास डेफिनेशन आते हैं. When a light rays passes through a medium, then by colliding with atoms, ions, molecules, light is scattered in different direction. It is called scattering of a light. तो बहुत इजी मेथड है इसको समझने का अपने पास. देखो भाई, when light passes through a medium, then by colliding with atoms, ions and molecules and particles. ठीक है ना. तो इसको यूं समझे, लाइट रे passes through atmosphere. एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं गैसेस के गैस मॉलिक्यूल्स हैं. गैस मॉलिक्यूल से लाइट आई तो अपने पास यहाँ से अगर देखें तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर चली गई, कोई इधर चली गई. देन अपने पास स्कैटरिंग हो गई. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज फिनोमेना इन विच light rays are scattered in different direction by colliding with molecules or ions or atoms of a medium. Is it clear? कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में अपने पास. ठीक है, अब अपन चलते हैं. अकॉर्डिंग टू रेले, एक साइंटिस्ट हुए हैं भाई रेले. तो अकॉर्डिंग टू रेले, intensity of scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength. Is inversely proportional to I is inversely proportional to lambda power. So intensity of scattering is inversely proportional to wavelength, fourth power of a wavelength. Clear? आगे अपन इसमें चलें अपने पास. इसके लिए कंडीशन है, इफ A is very very less than lambda, here size of particle or molecule of medium, lambda is wavelength. So Rayleigh's scattering take place only if A is very very less than lambda, or we can say size of particle of medium is a must be very very less than a lambda or a wavelength. Then Rayleigh's scattering take place, and according to Rayleigh, intensity is inversely proportional to lambda for so that lambda increases, then intensity decreases. As we know, हाँ विबग्योर ही होगा भाई एसी का. ठीक है, तो ये विबग्योर में ही चलते हैं अपन. VIBGYOR wavelength 3800 angstrom, wavelength 7800 angstrom. As we know, lambda of red is more than lambda of violet, so that क्या रहेगा, intensity of red is less than intensity of violet. Intensity of red is less than intensity of violet, because lambda increases then intensity decreases, lambda decreases then intensity increases, so that maximum scattering for violet color and minimum scattering for a red color. अब एक चीज और चले अपन, violet, indigo and blue, so that maximum scattering take place for three colors, violet, indigo and blue, and minimum scattering is for orange and red, so that sky is a blue. आ गया रीजन समझ में अपने पास? कई बार आता है ना क्वेश्चन, sky is blue, what is reason, give reason why. ठीक है,
तो अपने को लिखना है अकॉर्डिंग टू रेले आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ4 सो दैट 1 सेकेंड भाई so that maximum scattering for violet, indigo and blue and minimum scattering for orange and red, then sky is a blue. Clear? आगे अपन एक और चलें अपने पास स्कैटरिंग का. रेड कलर scattered less and violet color scattered more, so that danger sign is made by red color. आपने कभी भी देखा ही है डेंजर साइन जो होते हैं उसमें रेड कलर यूज में लेते हैं. जैसे अपने पास ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स में स्टॉप करने के लिए अपने पास कौन सी लाइट होती है? रेड लाइट होती है. वो रेड लाइट इसलिए होती है बिकॉज रेड लाइट इज स्कैटर्ड लेस. तो अपने पास रेड लाइट कैन बी सीन बाय ए लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से ही दिख जाती है. ग्रीन लाइट होगी, ये ग्रीन हो गया, स्कैटरिंग अपने पास क्या होगा? लेस होगा, मैक्सिमम स्कैटरिंग पे आएगा ये भी. तो इसके स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो ग्रीन लाइट जो होगी वो क्लियर करने के लिए हुई. रेड लाइट फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक. डेंजर साइंस आर मेड बाय रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज स्कैटर्ड लेस. सेकंड आ गया अपने पास. दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फर्स्ट स्काई इज ब्लू, सेकंड रेड साइन आर डेंजर साइन आर मेड बाय रेड कलर हो गया. थर्ड अपन चलते हैं. At the time of sun rays and at the time of sunset, sun is looking reddish. आपने देखा होगा at the time of sunrise and sunset, sun के अपने पास अराउंड चारों तरफ जो है ना अगर आप देखेंगे तो रेडिश होता है. It is not blood red or exactly red, it is orange red. जो सन के अराउंड अपने पास जो कलर्स होते हैं सनसेट एंड सनराइज में, it is orange red and color is reddish, orange and red. रीजन बता देता हूं. At the time of sunrise and at the time of sunset, sun is at maximum distance from a particular point of earth. ठीक है. सनराइज एंड सनसेट कैसे होता है एक बार मैं बता भी देता हूं, आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे मेरे हिसाब से. तो देखो भाई, सनराइज और सनसेट को समझने का मेथड ये है. ये सन है, ठीक है. अब अपन सबसे पहले चलते हैं. सपोज डेट यहाँ पर इंडिया है जो इसके जस्ट फ्रंट में है, ठीक है. इसके जस्ट फ्रंट में है तो यहाँ पर अपने पास ये 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है ना. ये नून हो रहा है अपने पास, तो 12 बज गए क्योंकि डायरेक्ट सीधे स्ट्रेट लाइन में आएगी कि नहीं आएगी. अब अपने पास क्या हो रहा है, देखो अर्थ रोटेट हो रही है. अर्थ रोटेट हो रही है तो धीरे 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 अपने पास क्या हो रहा है, ये सनसेट होना शुरू हो गया. और यहाँ पर आते आते क्या हो गया, सनसेट हो गया अपने पास. और यहाँ पर अगर आओगे तो मिडनाइट हो जाएगी, ठीक है. तो सनसेट में अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट जो होगा वो अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गया. इसी तरह से ये मिडनाइट हो गई. उसके बाद में अगर आप चलें तो यहाँ पर सनराइज होने लगेगा क्योंकि लाइट रे यहाँ से यहाँ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी. तो यहाँ पर सनराइज होगा, यहाँ पर सनसेट होगा और यहाँ पर नून हो जाएगी. तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कब होगा, सनराइज एंड सनसेट. सो दैट a particular place of earth is at a maximum distance at the time of sunset and sunrise. then sunset and sunrise में अपने पास जो मिनिमम स्कैटरिंग होगी ऑरेंज एंड रेड की होगी. VIB is scattered more, then sun is looking red or a reddish can be seen around a sun. ठीक है. मिनिमम स्कैटरिंग होगी तो रेड कलर दिखेगा अपने पास. ये तो बात हो गई इसकी. उसके बाद में अपन चलते हैं. इफ A is very greater than lambda, then Rayleigh scattering is not take place and every color scattered by equally. Then every color scattered इक्वल. सारे कलर्स की स्कैटरिंग जो होगी सेम होगी अपने पास. सारे कलर की स्कैटरिंग सेम होंगी. देन सारे कलर मिलकर वापस कौन सा कलर बनाएंगे भाई, व्हाइट कलर. क्योंकि ये व्हाइट कलर का ही तो स्पेक्ट्रम है अपने पास. इसीलिए अपने पास ही क्या होता है कि क्लाउड्स आर व्हाइट, सो दैट
क्लाउड से आर ए वाइट, रीजन बता देता हूं। इन क्लाउड से H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई अपने पास, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए मोर देन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है वो भी बता देता हूं। ड्राई एयर है, एयर कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैक्सिमम है, नाइट्रोजन 78% है, ये 21% है। देन 99% कौन सी गैसेज है अपने पास? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है अपने पास। हाँ, क्लाउड्स आर वाइट। रमन एक्सपेरिमेंट अलग है भाई, रमन एक्सपेरिमेंट जो है वो एसी का अलग है। रमन एक्सपेरिमेंट जो अपने सिलेबस में नहीं है वो अलग है। कोलाइडी सॉल्यूशंस आते हैं उसमें आता है रमन एक्सपेरिमेंट, वो केमिस्ट्री में है, तो वो अलग मैटर है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इज 21%, 99% कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप देखें एक बार, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 28। इसका कितना हो जाएगा? 32। अगर आप एवरेज भी लें तो 30 आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का कितना आएगा? 2। यहां से देखो एक बार, प्लस यहां पर अपने पास कितना आएगा? 16 आएगा, तो ये 18 हो गया। सॉरी, यहां से ले लें अपने पास ये 7 और 14, हाँ ये 14 और ये हो गया अपने पास है, या चलो 30 ये ले लो। हाँ, इसमें ये 32 आएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 34 हो गया। यहां से अगर आप लेते हैं तो ये 28 हो गया, ये अपने पास 32 हो गया। एवरेज लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो एटॉमिक वेट ऑफ ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है? 30। अपने पास जो क्लाउड्स हैं उसमें अपने पास है मॉइस्चर एयर हो गई, H2O की प्रेजेंस ज्यादा है। साइज ऑफ H2O इज मोर देन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, so that Rayleigh scattering is not take place and every color scattered same or equal, then clouds are looking white, it is reason of a clouding। clear? अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है, वो बोलेंगे क्लाउड्स तो जो होते हैं ब्लैक भी होते हैं, है ना, बारिश में जो होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं। रीजन में बता देता हूं। बारिश में अपने पास जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर की प्रेजेंस मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है। वाटर की प्रेजेंस जब बहुत ज्यादा होगी तो लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा। व्हेन लाइट अब्जॉर्ब्स देन लाइट इज एब्सेंट, एंड लाइट एब्सेंट तो क्या कलर रहेगा? ब्लैक। रात में अपने पास देखा ही है, जब लाइट नहीं रहती है कौन सा कलर होता है अपने पास? ब्लैक कलर होता है। तो ये रीजन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास इज ओवर, थैंक यू।